Assalamu alaikum. Let us today explain a term within plant physiology, like you have understood other terms. This important term, which determines the movement of water within the plant cells, that is called as osmosis. Before I will explain what do you mean by this osmosis, which involves the movement of this solvent, let us first of all have a small introduction about the history of this very osmosis. Dear students, the concept of osmosis was first of all being proposed by this Pfeffer, who was a plant physiologist. Later on, the term was first of all given by A.B. Nollet, 1748, and then full explanation of this osmosis was given by two biologists, rather two plant physiologists, Traub and Dutroux. Now, after this, we will go to the concept. What do you mean by this osmosis? For that, I will simply tell you people. Osmosis means movement of water, or you will say it is movement of solvent. I will say it is movement of water. Sir, from which position? It is movement of water from pure state. I will tell you what do you mean by this pure state. From pure state to solution across semi-permeable membrane. Okay, this is important to understand. This is basis of plant physiology. Across semi-permeable membrane. So what does that mean? First term, it involves movement of water molecules. So that means जब भी ऑस्मोसिस होती है, वाटर एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम की तरफ जा रहा है. एक बात. दूसरी बात है, लेकिन जिस स्टेट से ये जा रहा है, जिस सिस्टम से ये माइग्रेट हो रहा है, दैट सिस्टम इज प्योर स्टेट. आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय प्योर स्टेट. लेकिन जहां ये जा रहा है वहां प्योर नहीं है, वहां सोल्यूशन है. लेकिन whenever it goes towards the solution, the membrane, जिसका बैरियर सामने आता है, जहां से इसे क्रॉस करना है, दैट इज बायोलॉजिकली स्पीकिंग दिस इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. बेटा आपको मैं सिंपली समझाऊंगा. सपोज मेरे हाथ में एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, एक बीकर है. इस बीकर की मैंने बेटा दो पार्टीशंस किए हैं. बीच में मैंने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को छोड़ दिया. अभी मैं बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. I can manufacture it, I can synthesize it. बीच में मैंने semi-permeable membrane यहां पे लिया है. इसके बाद ये वाला जो बीकर है, ये वाला जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इट इज A. यहां पे मैंने खाली प्योर वाटर डाला है. सिंपली स्पीकिंग, प्योर वाटर वो वाटर है जिसके अंदर सोल्यूट्स हमने ऐड नहीं किए. यू डोंट ऐड sugar, you didn't add glucose, you didn't add what is called as NaCl here, you didn't add sucrose here. So that means it is pure state without any concept of the solute here. और यहां पे मैंने solution में लिया है, लेकिन solution बीकर B में मैंने लिया है. So what is solution? ये वो एक कंसेप्ट है जिसमें सॉल्वेंट के साथ हम सोल्यूट ऐड करते हैं. For example, we take a tumbler of this water here, I add the glucose here, I add the sucrose here, I add any other material like NaCl. Solution has been formed here. So solution वो एक कंसेप्ट है जिसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो. सो हमने यहां पे प्योर वाटर लिया, यहां पे मैंने बेटा सोल्यूशन लिया. आई विल ऑब्जर्व, अगर बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होगा, वाटर की एक नेचुरल टेंडेंसी होगी. आई विल क्लैरिफाई दिस. आपने अभी तक याद रखा था ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर टू इम्प्योर स्टेट, लेकिन क्यों है मैं आपको थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करूंगा यहां पे. सो इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम दिस प्योर स्टेट
to this solution across semi-permeable membrane. So इस pure water से यहां water migrate होना towards this solution ताकि इसकी level increase होना across semi-permeable membrane, we will say a process has occurred that is called as osmosis here. बेटा सिंपली याद रखा है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट होंगे प्योर स्टेट से, जहां पे कोई सोल्यूट न था वाटर के अंदर, कोई डिस्टर्बेंस न थी, कोई फॉरेन पार्टिकल न था, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन जहां पे वाटर के साथ सोल्यूट्स ऐड थे, ये वाटर ऑफ मूवमेंट यहां से यहां तक जाना अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वी से दैट ऑस्मोसिस हैज टेकन प्लेस. अब क्वेश्चन है, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? बेटा याद रखना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको मेम्ब्रेन्स की 4 टाइप्स यहां पे एक्सप्लेन करके दूंगा. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इन प्लांट फिजियोलॉजी. लेटर ऑन I will take this semi-permeable membrane. हमने इसको यहां पे ऐड क्यों किया है? You will get. Biologically, membrane is something which is barrier between two systems here. In plant physiology, we will classify that there are 4 types of barriers, 4 types of membranes, 4 types of this permeability is shown here. So what is first membrane? First membrane is permeable membrane. You can just get वो membrane which allows both solute and solvent to pass. जिस मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूट भी पास होगा, सॉल्वेंट भी पास होगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन पास होगी विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यू मस्ट कॉल दैट वो वाला मेम्ब्रेन होगा परमेबल मेम्ब्रेन. सर प्लांट्स के पास कोई मेम्ब्रेन है, ऐसा कोई बैरियर है जो सॉल्यूशन को डायरेक्टली अलाउ करता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अलाउ करता है? बेस्ट एग्जांपल इज प्लांट सेल वॉल which is composed of cellulose here. Remember, this cell wall is actually permeable both to solute as well as solvent molecules. एक बात. दूसरी बात है, in certain cases within the plant world, I can observe that there could be membrane, but this membrane will neither allow solute nor allow solvent. वो वाला मेम्ब्रेन जिससे न सोल्यूट पास हो सकता है न सॉल्वेंट पास हो सकता है. प्लीज रिमेंबर, वी विल से दीज मेम्ब्रेन्स आर इम्परमेबल मेम्ब्रेन्स. एन एग्जांपल, ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you can manufacture aluminum foils that can't allow neither solute nor solvent. It is impermeable. कॉर्क वाल होगा, प्लांट्स में होता है कॉर्क, so that means it will be impermeable. ये thick walls होते हैं, बनते हैं, बनाए जाते हैं प्लांट मोल्ड से ताकि वाटर या सोल्यूशन मूवमेंट ना हो. that means it is impermeable. रबर बेहतरीन एग्जांपल है हमारी, that will be impermeable both to solute as well as solvent here. और प्लांट्स में कभी सुबेरिन वॉल्स बनते हैं, ये आगे लेक्चर्स में आपको बताऊंगा सुबेरिन कहां पे बनता है. ये सेल वॉल में कभी इम्प्रेग्नेट होता है, डिपॉजिट होता है ताकि सॉल्यूशन वहां से पास ना हो. इट इज इम्परमेबल. सो आपने याद रखा है वो वाला मेम्ब्रेन जहां से न सोल्यूट पास होगा न सॉल्वेंट पास होगा, वी से दैट द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल. बेस्ट एग्जांपल इज सुबेरिन एंड कॉर्क वॉल इन केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स. थर्ड, देयर इज अनदर मेम्ब्रेन, वी कैन मैन्युफैक्चर इट, we can synthesize it, we can use in the classrooms, we can use in the labs to demonstrate concept of the osmosis, that is semi-permeable membrane. That membrane which allows only solvent but not the solute. वो वाला membrane जिससे खाली solvent pass होगा, solutes will be resisted, solutes will be blocked here. Please remember that means it is semi means half permeable membrane. क्योंकि solution में 2 है, solvent plus solute. अगर solvent allow किया जाए, solute restrict किया जाए, you must say it is semi-permeable membrane. And please remember, the best example is cellophane. This is one. Second is copper ferrocyanide and third is parchment paper. बेटा ये सारे membranes हम बना सकते हैं and we can use them for number of the purposes. And you must remember, ऐसे semi-permeable membranes biological systems में exist नहीं होते हैं. सब biological systems में क्या exist होते हैं वो actually आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा. लेकिन इससे पहले semi-permeable membrane वो membrane है जो हम बनाते हैं, यही कल जाके osmosis की demonstration के लिए मुझे चाहिए. सर क्यों? अभी आपने देखा osmosis means movement of water only. मैंने कभी नहीं बताया movement of solutes,
movement of solvent only. It is movement of water from pure to solution across semi-permeable membrane. इसलिए अगर बीकर के बीच में यहां पे मिडिल में semi-permeable membrane होगा, so सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास होगी तो हमारा ऑस्मोसिस का काम आसान होगा. Hence you have to say ये जो semi-permeable membrane होता है, it is used to demonstrate the concept of the osmosis. Fourth membrane existing in our plasma membrane, existing in biomembranes, existing in tonoplastos here. Please remember here that is selectively permeable membrane, as the term suggests. It will allow the solvent, water will be allowed. You know, aquaporins are the conceptors. Those are the channels through which water can pass. Plus, there are solutes, but solutes are selected in the biological systems here. So, अगर एक membrane से solvent pass होगा और solutes में खास solutes enter हो गए, please remember this membrane is called as selectively permeable membrane. The best example is plasma membrane or cell membrane here, and another example is the membrane covering the vacuole here, that is called as tonoplast here. बेटा ये पहली introduction आपने याद रखी है. जो membranes है वो चार किस्म के हैं, लेकिन जो membrane हम osmosis में इस्तेमाल करेंगे demonstrate के लिए, प्लीज रिमेंबर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अगर ऑस्मोसिस होगी सेल्स में, डेफिनेटली इट ऑकर्स विद इन द सेल्स, तो नेचुरल एक मेम्ब्रेन वहां पे बैठा है, दैट विल बी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. लेकिन फिलहाल what do you mean by osmosis? It is migration of the water molecules, migration of what is called as solvent from pure state, from the state where there is no addition of the solute towards that stage where we have added the solutes here, where there is solution. So movement of water from pure to solution is actually called as osmosis. ये पहला concept है. दूसरी बात, सर अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल अब SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है. बेटा याद रखिए, ऑस्मोसिस को आपने अंडरस्टैंड करना है. यहां पे आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को लिया. मैं आपको समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय दैट. दोनों तरफ से सॉल्यूशंस है, लेकिन एक साइड से डाइल्यूट सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. सर व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट, What do you mean by concentrated? Dilute solution वो है जिसके अंदर कम solutes मैंने ऐड किए हैं. So that means इसके अंदर solutes का नंबर वो कम है, less solutes are added in this. It is dilute solution. और इसके अंदर मैंने ज्यादा solutes डाले हैं. अब अगर हम osmosis लेंगे, नेचुरली वाटर में टेंडेंसी है जहां पे कम solutes है, यानी यहां पे dilute solution है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स उठेंगे, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट होंगे, ये इस स्टेट की तरफ जाएंगे जहां पे ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स है, जहां पे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है. तब जाके आपने दूसरी एक टर्म याद रखी है, दैट मींस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, dilute to concentrated solution across semi-permeable membrane. Please remember this is called as osmosis. So अगर water move होगा जहां पे solutes कम है, suppose यहां पे 5 मोलर solution है, यहां पे 10 मोलर solution है, यहां पे मैंने 5 टीस्पूनफुल शुगर्स ऐड किए, यहां पे मैंने 10 टीस्पूनफुल शुगर्स ऐड किए. दैट मींस सोल्यूट्स ज्यादा यहां है, सोल्यूट्स कम यहां है. जहां ज्यादा सोल्यूट्स है वहां कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां कम है वहां डाइल्यूट. वाटर की टेंडेंसी है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से उठ के यहां डायरेक्टली आ सकता है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अगर डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाटर की माइग्रेशन होगी, बेटा व्हाट इज दैट, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. सो ये दो बातें हैं जो अभी तक आपने याद रखी है. एक, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर स्टेट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हियर, दैट इज ऑस्मोसिस. अब क्वेश्चन है, दोनों साइड से सॉल्यूशन है, अब यहां पे कंपेयर करना है कहां डाइल्यूट है कहां कंसंट्रेटेड है. डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑकर्स, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. तीसरी बात आपको मैं बताऊं, सपोज दिस इज SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहां पे मैंने
वाटर मॉलिक्यूल का एक सिस्टम लिया है, सपोज ये प्योर है, यहां पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मैंने सोल्यूट्स बेटा ऐड किए हैं, दैट मीन्स दिस इज सोल्यूशन। प्लीज रिमेंबर, यहां पे कोई सोल्यूट मैंने ऐड नहीं किया है, दिस इज प्योर वाटर। अब तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं। अगर आपको याद होगा, माय बिगिनिंग क्लास इज अबाउट डिफ्यूजन, आप याद रखिए यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की एक नेचुरल टेंडेंसी है। सर व्हाट इज दिस नेचुरल टेंडेंसी? वाटर मॉलिक्यूल्स हैव डांसिंग एनर्जी, वी कॉल दिस एज काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स में एक प्रेशर क्रिएट होता है इन वाटर मॉलिक्यूल्स से ऑन दिस बीकर, ऑन दिस कंटेनर, ऑन द वॉल्स। कैन यू टेल मी, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से इन वॉल्स पे, कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू रैंडम काइनेटिक एनर्जी, वी कॉल दिस एज डिफ्यूजन प्रेशर। सो इसीलिए यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, शाबाश, नाइस, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को आपने सोल्यूट्स ऐड किए। बेटा याद रखिएगा, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को फॉरिन सोल्यूट्स ऐड किए हैं, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान एक डिस्टर्बेंस आई है। दैट मीन्स इनमें इतना मूवमेंट अब नहीं हो सकता है व्हेन दे वर फ्री, व्हेन दे वर इन देयर ओरिजिनल पोजीशन इन द प्योर स्टेट हियर। इसीलिए जब सोल्यूट्स ऐड किए जाते हैं, जब सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाएगा, डेफिनेटली जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड हियर। सिंपली स्पीकिंग, यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। डिफ्यूजन प्रेशर विल बी लेस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होगा। सो यहां पे भी डिफ्यूजन प्रेशर है, लेकिन ज्यादा है। यहां पे भी डिफ्यूजन प्रेशर है, लेकिन कम है। जरा बेटा आप मुझे बताइए, ये प्योर है, ये सोल्यूशन है, जरा मुझे बताइए वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव होगा ए टू बी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, from higher diffusion pressure to lower diffusion pressure. इसलिए you can redefine osmosis as the movement of water molecules from higher diffusion pressure to lower diffusion pressure across semi-permeable membrane. Again, I will try to understand this. बेटा याद रखिए, जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, randomly they are moving here, they are dancing here, they show kinetic energy, they try to create the force on the walls here. That means their purity dictates that they have diffusion pressure. लेकिन जिस सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल्स को आपने डिस्टर्बेंस किया है, why, how? We have added the solutes here. जब आपने solutes यहां पे ऐड किए हैं, that means इन वाटर मॉलिक्यूल्स का रैंडम मूवमेंट कम होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। कहने की बात यह है कि इनमें डिफ्यूजन प्रेशर होगा, that will be reduced here. So अगर हम बताएंगे वाटर की नेचुरल एबिलिटी होती है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from higher diffusion pressure to lower diffusion pressure, इसीलिए हम osmosis को redefine कर सकते हैं that it is movement of water molecules. It is movement of water molecules from higher dP, from higher diffusion pressure state to lower diffusion pressure state, lower dP, lower diffusion pressure state across semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane हम नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, लैब्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विद इन सेल्स, विद इन द ऑर्गेनिज्म्स, नेचुरली जो ऑस्मोसिस होगी दैट विल बी इन्वॉल्विंग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सो इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल दैट देयर इज ऑस्मोसिस, इट नीड्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. That means semi-permeable membrane के साथ साथ selectively permeable membrane भी होगा biological systems में. तो osmosis normally होगी. At instances we observe in humans, in plants, osmosis can occur. लेकिन हम बात कर रहे हैं osmosis में movement of water molecules की from higher diffusion state to lower diffusion state across semi-permeable membrane or selectively permeable membrane. इसके बाद 3 terms आपने याद रखी, 3 definitions you have obtained from what is called as this osmosis. एक, movement of water from
pure state to solution, this is first, across SPM semi-permeable membrane, or second, movement of water molecules from dilute to concentrated solution across semi-permeable membrane, or movement of water from higher diffusion pressure which is found in the pure state to lower diffusion pressure across semi-permeable membrane. लेकिन बेटा इसके बाद आप याद रखिए, we go to thermodynamics. We try to understand thermodynamics.